अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। एक तो आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर जमात इस्लामी का क्या सोचना है, वो बात आपके साथ रखी जाएगी। दूसरा अहम मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है और उसको लेकर जो कुछ चीजें हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएंगी। तीसरा, देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, और उसको लेकर कुछ दिनों पहले ब्लूम वेंचर की एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई है। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जमात इस्लामी का क्या कंसर्न है, जमात इस्लामी क्या सोचती है, वो आपके समक्ष रखा जाएगा। और आखिर में पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से कम्युनल इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यूपी में और देश के अलग अलग हिस्सों में, उसको लेकर भी जो है जमात इस्लामी का स्टैंड आपके सामने रखा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ रहमतुन्निसा साहिबा, नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद मौजूद हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सबसे पहले रहमतुन्निसा साहिबा, नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद से अनुरोध करता हूं कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। Once again, I welcome all of you and greetings. As you all know, today is International Women's Day, March 8th. So, on this occasion, Jamaat-e-Islami Hind expresses the deep concern over the alarming rise in crimes against women in India. The latest National Crimes Records Bureau NCRB data shows a shocking 51 cases of crimes against women per 1 lakh women in 2022. Even more distressing is the fact that rape is reported every 10 minutes in the country. The NCRB data on conviction rates for crimes against women shows cases of murder with rape or gang rape have a conviction rate of 69.4%. The rate drops to a mere 27.4% for rape cases and even lower for other forms of sexual violence. This is the alarming situation because these figures indicate a serious failure in delivering justice. And we want to invite your attention on this. The failure in delivering justice and ensuring deterrence. Recent incidents of rape and murder of the medical doctor in R.G. Kar Medical Hospital, Kolkata, and the rape of a woman in Pune in a bus parked at the state transport bus stand. All these incidents show the fragile nature of any safety net for women. So it's very fragile. That's what we understand from all these incidents. And the harassment of Union Minister Raksha Khalse's teenage daughter, that demonstrates that when VIPs are not safe in our country, one can only imagine the plight of ordinary citizens, ordinary women. The daily thousands of cases of unreported eve teasing and sexual molestation highlight the deep-rooted moral crisis in our country. So we at Jamaat-e-Islami Hind, we strongly believe that real women's empowerment lies not merely in slogans and promises, but in ensuring their safety, dignity, and rightful place in society. Laws must be implemented effectively, of course, but beyond that, social reform, societal reform is essential. We need to follow the values, we need to educate on the religious instructions. Like for example, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, "The best among you is the one who has the best morals." So true empowerment begins when women are respected, protected, and provided with opportunities to contribute meaningfully to society
without fear. So when women come out to contribute constructively for the society, they should be provided with a situation where they are fearless. So this is very, very important. So Jamaat-e-Islami Hind urges the government, educational institutions, and civil society to take concrete steps to inculcate respect and dignity for women from an early age. School curriculums must emphasize moral education, and a culture of accountability must be cultivated. We call upon the government to rise beyond tokenism and ensure women are treated with the dignity and honor they deserve. Thank you so much. जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद में प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके समक्ष बाकी 3 मुद्दों पर अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी को सलाम व आदाब। रमज़ान के मुबारक महीने में आपको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दी गई है, उसकी भी सबको मुबारकबाद। अभी आपके सामने हमारी बहन रहमतुन्निसा साहिबा ने देश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसीलिए हमने शुरुआत महिलाओं के समस्याओं और महिलाओं के सामने जो चैलेंजेस है हमारे देश में उससे की है। और आपने सुना कि किस तरह से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, और हमारा जो जस्टिस का सिस्टम है और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो किस तरह इस पूरे मामले में बहुत इनफेक्टिव साबित हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी से रिलेटेड एक लोअर कोर्ट का फैसला हाथरस मर्डर रेप केस में आया और ताज्जुब और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें 4 में से 3 अक्यूज्ड को बरी कर दिया गया, जो बहुत ही अफसोसनाक है। और आप जानते हैं कि वो महिला जिसके साथ ये घटना हुई, मर्डर हुआ, रेप हुआ, वो दलित समुदाय से थी और अदालत से भी उनको एक तरह से निराशा और मायूसी हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी अदालतों का और जुडिशियल सिस्टम भी कमज़ोर लोगों को इंसाफ दिलाने में और ख़ास तौर से कमज़ोर तबके की जो महिलाएं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा हमारे देश और समाज के लिए, सबके लिए चिंता का बड़ा विषय है। हमने जो 3 और मुद्दे शामिल किए हैं उनमें सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का है। आपको सब मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से बराबर वक्फ के बारे में पूरे देश में बहस चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया, उसके हवाले किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लोगों की राय मांगी, लोगों से डिस्कशन किए, ऑर्गेनाइजेशन से और आम लोगों से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। और उसमें बीच बीच में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन और जो उसको कंट्रोल करते हैं उनके रवैये पर भी सवाल उठते रहे, एतराज़ भी होते रहे और आखिरकार 14 अमेंडमेंट्स जो प्रपोज किए गए जेपीसी के ज़रिए से उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और अब ये अंदेशा है कि वो बिल कभी भी पार्लियामेंट में पास कराया जा सकता है, जैसा कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है। और ये पूरी तरह स्पष्ट है कि देश भर का मुसलमान इस अमेंडमेंट बिल को अपने अधिकारों में
एक तरह की दखल अंदाजी समझता है जो संविधान में दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज करें। तो इस बिल में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो अमेंडमेंट पूरी तरह से वक्फ को और ज़्यादा, वक्फ की जायदादों को और ज़्यादा खतरे में डालता है। और इसमें जो वक्फ को जो पावर्स हैं और जो अख्तियारात हैं वो बहुत कम किए गए हैं और इसको इनइफेक्टिव किया गया है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसमें ये अमेंडमेंट बिल भी लाया गया कि नॉन मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम नहीं हैं, उनको भी मैंडेटरीली उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे ये मैसेज जाता है जो बहुत गलत मैसेज है कि मुसलमान अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या उसमें ईमानदारी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये कि बहुत बड़ा गलत मैसेज है जो कम्युनिटी को दिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि पूरा उसमें जो वक्फ बाय यूजर्स है उसको भी जिस तरह से यहाँ अमेंडमेंट लाया गया है, और रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर कराने के लिए 6 महीने की जो मुद्दत रखी गई है, और अगर उस दरमियान वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कई लीगल, आप उसमें लीगल कार्रवाई नहीं कर पाएंगे अपनी वक्त की जायदादों को बचाने में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें लाई गई हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हमारी निगाह में ये है कि जब पूरे देश का मुसलमान इसके खिलाफ है, सारे संगठन इसके खिलाफ हैं, इसके बावजूद सरकार इस बिल को, अमेंडमेंट को लाने पर अड़ी हुई है, तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। और ये बिल अगर आज जिस हालत में है इसी सूरत में पास हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये संविधान की जो स्पिरिट है और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, उन अधिकारों पर चोट करने वाला है। तो हम इस मौके पर सरकार से भी कहते हैं कि वो समझदारी से काम ले और इस बिल को पास ना करें, इस बिल को वापस ले। और हम जो सरकार के जो एलाइज हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो भी अपना रोल अदा करें और इस बिल को रोकने की पूरी कोशिश करें। सेकुलर पार्टीज और विपक्ष की पार्टियां अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस देश में एक गलत किस्म का एक रुझान पैदा करेगा और एक असुरक्षा की भावना जो आज मुसलमानों में पैदा होगी इस बिल के पास हो जाने से, वो और दूसरी जगह पर फैलेगी। हम पहले भी कहते रहे हैं कि सरकार इस पहले किसानों के बारे में इस तरह का बिल लेकर आई थी और दावा ये था कि हम किसानों के भले के लिए बिल ला रहे हैं। वो बिल पास भी करा लिया गया, कानून भी बन गए, लेकिन जिनकी भलाई के लिए बिल लाया गया था वो खुद नाराज थे और उन्होंने पूरे देश में प्रदर्शन किए और आखिरकार सरकार ने उस पास हुए बिल को वापस लिया बगैर किसी शर्त के। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और जो मौजूदा बिल है उसको ईमानदारी के साथ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे और वक्फ की जो जायदादें हैं, जो सरकार की जायदाद नहीं है बल्कि वो लोगों के दिए हुए दान हैं, लोगों की दी हुई जायदादें हैं, जो लोगों की अपनी जायदादें थी वो वक्फ की गई हैं। और उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है हमारे संविधान में, उसको कमज़ोर ना करें। इससे मुल्क में, समाज में एक किस्म के अविश्वास का वातावरण पैदा होगा और राजनीतिक फायदों के लिए
सरकार में बने रहने के लिए या वोट्स को पोलराइज करने के लिए, इस तरह की चीजों को करना हम समझते हैं कि ये बहुत ही नुकसानदेह है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए या अपने वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह के इश्यूज को इस तरह हैंडल करते हैं और अपनी पार्लियामेंट की ताकत की बुनियाद पर आप कोई भी बिल पास करा लेना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में एक प्रदर्शन करने का, धरने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी हिंद उसको सपोर्ट करती है और जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के साथ और इस प्रदर्शन में भी शामिल होगी। इसके साथ ही अगर ये बिल खुदा न खास्ता सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहकर इसको पास कराती है तो फिर जितने कानूनी रास्ते मौजूद हैं, जितने लीगल रास्ते मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते मौजूद हैं, डेमोक्रेटिक और पीसफुल रास्ते जो हो सकते हैं दबाव बनाने के, वो सारे अपनाए जाएंगे और इस बिल को वापस पास न होने की पूरी कोशिश न सिर्फ जमात इस्लामी हिंद करेगी बल्कि मुस्लिम समुदाय और दूसरे संगठन सब मिलकर इसको अंजाम देंगे। तो हम सरकार से आखिर में ये अपील करना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है और समझदारी से काम लें और इस बिल को वापस लिया जाए। दूसरा मुद्दा जो है हमारे सामने वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का है कि आर्थिक असमानता जो हमारे समाज में बढ़ती जा रही है और अभी जो रिपोर्ट आई है ब्लूम वेंचर्स की वो बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि पिछली रिपोर्ट की तस्दीक भी करती है वो, और लेकिन इस रिपोर्ट में जिस तरह से बात कही गई है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है उसके अलावा जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, दूसरी चीजें हैं इस्तेमाल की, उसका बड़ा हिस्सा जो है 10% आबादी वो इस्तेमाल करती है। 10%, सिर्फ 10% लोग, यानी अगर 142 करोड़ मान लें तो हम 14 करोड़ लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं और 23% जो रिसोर्सेज हैं वो 1/3 जो 2/3 तो पूरा 10% लोग इस्तेमाल करते हैं और 1/3 जो है वो 23% लोग इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है वो बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। इससे अंदाजा हम कर सकते हैं, जो पिछली रिपोर्ट थी ऑक्सफैम की उसमें भी बताया गया था कि 1% लोगों के पास 73% वेल्थ है और जो लास्ट पुअरेस्ट 50% है उनके पास 1% रिसोर्सेज हैं। तो जमात इस्लामी हिंद इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पर शुरू से चिंता जताती आई है और हम समझते हैं कि ये पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिसीज की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। जमात इस्लामी हिंद बराबर कहती रही है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए इकोनॉमिक जो इंक्लूसिव हो और जिसमें तरक्की और प्रॉस्पेरिटी वो सब लोगों तक पहुंचना उसका जरूरी है। बजट के मौके पर भी जमात इस्लामी हिंद बराबर इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाती रही है कि वो वेलफेयर पर और सोशल सेक्टर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और लोगों की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने की तरफ बराबर जमात इस्लामी हिंद तवज्जो दिलाती रही है। इसी तरह हम ये भी कहना चाहते हैं कि टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सोशल सेक्टर में ज़्यादा खर्च और वेलफेयर के मेजर्स उस पर ज़्यादा खर्च करने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो
जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनमें दलित्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज और ख़ास तौर से मुसलमान, इनकी इकोनॉमिक कमज़ोरी को एड्रेस करने के लिए खुसूसी मेजर्स लेने की ज़रूरत जमात इस्लामी हिंद महसूस करती है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो जिस रुख पर हमारा मुल्क इकोनॉमिकली जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक रुख है और अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और दौलत बढ़ तो रही है, लेकिन वो दौलत कुछ बहुत कम लोगों के पास जमा हो रही है और बाकी लोगों को बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो भी उनको मैसर नहीं आ रहे हैं। आखिरी जो इशू हमने लिया है वो मुल्क में पिछले दिनों कम्युनल हेट्रेड और वायलेंस की जो घटनाएं जगह जगह हुई हैं, वो हम सब के लिए और ज़्यादा चिंता की बात है। इसमें ख़ास तौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, और यहाँ पर जिस पैमाने पर डिमोलिशंस किए गए हैं और बायस तरीके से किए गए हैं और सेलेक्टेड डिमोलिशंस हैं, और डिमोलिशंस का पैटर्न देखेंगे तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर से टारगेट किया गया है। यहाँ तक के रिलीजियस प्लेसेस भी उसमें शामिल हैं जिनको एनक्रोचमेंट और दूसरी इरेगुलरिटीज बताकर उनको डिमोलिश किया जा रहा है। तो मुल्क में एक खास किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और मुल्क के मुसलमानों की तस्वीर को एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके खिलाफ नफरत फैलाना और आसान हो जाए, और ये इसी हेड का एजेंडा है। इन डिमोलिशंस के जरिए से और जिस तरह के सर्वे आजकल हो रहे हैं उससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ बहुत सारे लोग आकर रहने लगे हैं और एनक्रोचमेंट से जोड़ा जा रहा है कि गोया सारा एनक्रोचमेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। तो ये जो दो लेबल्स लगाकर एक नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये एनक्रोच करने वाले और इलीगली बहुत सारे मुसलमान इस मुल्क में रह रहे हैं, ये एक नफरत का एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और आप देख रहे हैं ट्रेन्स में और कहीं मध्य प्रदेश का जो वाकया हुआ है काउस लोटर के नाम पर, क्लाउस उनका इल्जाम लगाकर, और किस तरह पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस की कस्टडी में उनके साथ जो सलूक किया गया वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। यानी लोगों ने तो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो एक्शंस हैं लोगों के, जिनके जो पुलिस उसको देख भी रही है और पुलिस के सामने लोग ऐसा कर रहे हैं, और फिर पुलिस कस्टडी में भी ब्रूटैलिटी हो रही है और पुलिस कस्टडी में भी उनको गलत तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं गलत किस्म के। तो ये बताता है कि स्टेट जो है जिसका काम लॉ एनफोर्स करना है, जिसका काम कानून का निफाज है, वो अगर हेट एजेंडा का हिस्सा बन जाए या बनने लगे तो ये इससे ज्यादा और अफसोस की बात क्या हो सकती है। तो ये हम कहना चाहते हैं पूरे देशवासियों से आपके माध्यम से कि ये जिस तरह से हेट का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह एक समुदाय विशेष और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, अभी आपने अलवर में देखा कि वहां साइबर क्राइम्स के नाम पर पुलिस वहां जिस तरह से राजस्थान की पुलिस घरों में घुस रही है बिना नोटिस के, बिना आप कोई गाइडलाइन और जो कानून और ज़ाब्ते बनाए गए हैं उन ज़ाब्तों का ख्याल किए बगैर रात को 2 बजे, सुबह 6 बजे बिना इत्तला के दरवाजा तोड़कर, दीवार तोड़कर और लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करके आप घरों में घुस रहे हैं और फिर
जांच के नाम पर, छानबीन के नाम पर, छापे के नाम पर कि यहाँ हमको खबर मिली है कि यहाँ क्राइम यहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ से फला हुआ है, लेकिन जो कायदे कानून ज़ाब्ते पुलिस को किसी के घर में घुसने के बनाए गए हैं, अगर खुद पुलिस ही उनको तोड़ेगी तो आखिर लॉलेसनेस जो है वो खुद पुलिस पैदा कर रही। और अलवर में तो बहुत दर्दनाक वाकया हुआ है कि इमरान नाम के एक शख्स के घर में पुलिस सुबह 6 बजे, आप देख सकते हैं 6 बजे कितनी जल्दी होता है, अंधेरा होता है, 6 बजे पुलिस पीछे के रास्ते से दाखिल होती है और उसकी बीवी को जब वो मुखालफत करती है, विरोध करती है, तो उसको पकड़ के बाहर कर दिया जाता है और पुलिस चारपाई पे चढ़ जाती है और जिस चारपाई पे चढ़ती है वो 1 महीने की बच्ची जो है वो उनके पैरों तले कुचल के अपनी जान दे देती है। तो जरा आप गौर कीजिए किस तरह की ब्रूटैलिटी ये पुलिस के जरिए से हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस भी अगर ज़ाब्ते के खिलाफ काम करती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए। हालांकि वहां उनके खिलाफ शिकायतें हुई है, FIR दर्ज हुई है और दिखाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे लगे कि पुलिस ने जो इतना गलत काम किया है और जिस तरह का बर्ताव किया गया है, ये बर्ताव अगर पुलिस का रहता है तो कैसे पुलिस पर भरोसा किया जाएगा। और अगर पुलिस खुद नफरत के एजेंडा का हिस्सा बन जाए तो फिर ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तो हम आपके माध्यम से देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त इस बात की जरूरत है कि हम समाज के तौर पर, सामाजिक तौर पर सरकारों पर, पुलिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर ये दबाव बनाएं कि वो कानून के मुताबिक, कानून का राज होना चाहिए और जो ज़ाब्ते और कानून बनाए गए हैं उसके मुताबिक ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए और कानून हाथ में लेने का अख्तियार किसी को भी नहीं है। और खुद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए पाबंद किया जाना चाहिए कि वो अगर अपनी ड्यूटी निभाते वक्त वो पूरे कानून का, लोगों की प्राइवेसी का और जो ज़ाब्ते बने हुए हैं उनका ख्याल रखा जाए और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। तो हमारा मुल्क इस वक्त नफरत के एजेंडे की तरफ ले जाया जा रहा है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारें भी उसका हिस्सा बन रही हैं, जिनको दस्तूर और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। ये हम सब के लिए, और देश एक फासिज्म के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है और सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि आज अगर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर, उसके खिलाफ नफरत बनाकर और ये रुझान आगे बढ़ रहा है तो ये देश के लिए, देश को बहुत ही गलत रुख पर ले जाएगा और देश और समाज में एक अराजकता की स्थिति पैदा कर देगा अगर इसी रुख पर हम आगे बढ़ते रहे। तो हम आपके माध्यम से जमात इस्लामी हिंद यही कहना चाहती है कि सिटीजन अपना रोल अदा करें, पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल अदा करें और सामाजिक संस्थाएं अपना रोल अदा करें और आप जैसे जिम्मेदार मीडिया के लोग भी अपना रोल अदा करते हुए जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की जो गलतियां और कमजोरियां हैं उनको उजागर करते हुए उनको सही रास्ते पर लाने में आप भी अपना रोल अदा करने की कोशिश करें। थैंक यू। धन्यवाद। उसके बाद अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो लिए जा सकते हैं। सलीम साहब, आपने अभी पुलिस और प्रशासन को लेकर भी कई सारी बातें की और कई सारे एग्जांपल्स आपने गिनाए, एमपी के गिनाए, अलवर का गिनाए। दिल्ली से ही सटा हुआ संभल है, संभल में भी अभी कुछ दिनों पहले जो सर्किल ऑफिसर हैं उनका एक बयान काफी वायरल हुआ और आपने सुना भी होगा कि जुमा साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है। अगर मुसलमानों को दिक्कत है तो फिर इस दिन वो अपने घर से ना निकले और अगर रंग पड़ जाता है तो फिर उस जगह को कटवा दें। कैसे देख रहे हैं इस बयान? इसमें कोई नया नहीं है। जिनका एजेंडा नफरत हो और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके पिछले बयानों को आप देखें, जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं।
सवाल ये है, ऐसे लोगों के खिलाफ और सरकारी मुलाजिमत में रहते हुए ऐसे अगर बयान देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई न होना ये चिंता की बात है। तो नफरत का एजेंडा तो कुछ लोग चला रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन उसका हिस्सा बन जाए तो ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। जी जी। नो, APCR अपने तरीके से चीज़ों को देखती है और हम कहाँ इंटरवीन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो यकीनन ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम बताएंगे APCR के लोगों को कि वो इस तरफ तवज्जो करें। आपने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की है। जी जी। आपने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसकी जो असल जड़ है वो तो जाहिर सी बात है कि वो है कि साहब धन या दौलत जो है एक जगह जो जमा हो जाता है चंद हाथों में और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्वल बुनियादों पर नहीं होता है, जिसकी ताकीद कुरान में की गई है जी। जिसकी ताकीद आपको आर्टिकल 39B ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है। लेकिन आपकी तरफ से कोई आवाज़ कभी नहीं आई। अभी हाल में आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो 75वीं सालगिरह मनाई गई, तो उस मौके पर किसी ने ये सवाल नहीं किया, आपने भी नहीं किया कि मुल्क की जितनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन की मानहानि होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकीद किया है आपको ये 39B ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ में ताकीद किया है, जिसको हमारा कुरान भी कहता है। तो आप इधर उधर की बात करते हैं कि ये इनइक्वालिटी है, लेकिन असल जहाँ जड़ है उस पर क्यों नहीं जोर डालते हैं? हाँ नहीं, जिससे बात की जाएगी उससे उसी जबान में बात की जाएगी जो बात वो समझ सकता है। और जाहिर है कुरान तो आपको नहीं, कुरान की बात जो आप कह रहे हैं उसको हम अलग तरह से कहते रहे हैं और हम इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की बात हमेशा करते रहे हैं और ज़कात के बारे में हमेशा हम बात करते रहे हैं। लेकिन सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट और कॉरपोरेट और बड़े कारोबारी लोगों को सपोर्ट करने की है और जो आम लोग हैं उनको नज़रअंदाज करने की है। ये एक बड़ा फ्लो है, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट रही हो या उससे पिछली गवर्नमेंट रही हो, लेकिन अब ये डिस्पैरिटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। तो ये डिस्पैरिटी जो है ये नहीं बढ़नी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी बात कहता है। गांधी जी ने जो बात कही थी कि हम सही आज़ादी उस वक्त महसूस करेंगे जब देश का आखिरी जो आदमी है, जो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है, वो भी अपने आप को मजबूत महसूस करे और उस तक भी देश की तरक्की का जो फल है वो उस तक भी पहुँचे। तो जाहिर है हमारी पॉलिसीज़ में कमज़ोरी है और पॉलिसी की कमज़ोरी की तरफ बार बार तवज्जो हम भी दिला रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि आप भी इसमें और कोशिश कीजिए कि कैसे हुकूमतों पर ये दबाव बनाया जाए और कैसे हुकूमतों को इस गुलामी से निकाला जाए। ये किस्म की गुलामी है जो जिसमें हुकूमत है और हुकूमत को इस गुलामी से निकालना ये जनता का काम है, आम लोगों का काम है। सलीम साहब, मेरा एक सवाल है। आपने बात की कि माइनॉरिटीज पर और माइनॉरिटी इश्यूज पर लगातार इस तरीके की चीजें हो रही है, हमले हो रहे हैं। सतीश गौतम जो अलीगढ़ से सांसद है, एमयू को लेकर उनके बयान आया है उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कि होली मनाने दें वरना इसके अंजाम दूसरे हो सकते हैं। जबकि एक हजरत है बरेलवी हजरत, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम इदारा है, यहाँ पे होली नहीं मनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो आपस में खुद ही पैदा किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ऐड कर दूं उसमें कि बाकायदा सतीश गौतम ने ये बोला है कि अगर एमयू में कोई होली खेलता है और मारपीट करता है तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये है। तो देखिए, हम नहीं जानते कौन साहब हैं ये और नहीं हम जानना चाहते ऐसे नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले। लेकिन जो ऐसी जबान का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कानून मौजूद है और कानून को काम करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ किसी को भी इस तरह की बात कहने का अधिकार नहीं है और अगर कोई
संवैधानिक पद पर और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई है और चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो ऐसी बातें करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिस्टर रहमतुन्निसा से मेरा सवाल है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात तो इसमें की गई है आज के स्टेटमेंट में, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप नेशनल सेक्रेटरी हैं, तो लेकिन क्या आपके पास वो प्रैक्टिकल मेजर्स क्या हैं जिससे आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? अभी हाल में आपने एक कैंपेन चलाया निकाब को लेते हुए, हिजाब को लेते हुए, क्या उससे विमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा? वो प्रैक्टिकल मेजर बताइए, आप ध्यान में क्या है? जी, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन का जो इक्विटी मिलना है उसके लिए प्रैक्टिकल मेजर्स हमने मेंशन किया इसमें। सबसे पहले कानून का इम्प्लीमेंट ठीक से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और बिना फेस देखकर होना चाहिए। अभी जैसा कि सलीम साहब ने कहा, अगर एक खातून दलित और आदिवासी और लो जो मार्जिनलाइज सोसाइटी का है तो उनके ऊपर कुछ जुल्म हुआ है तो उस पर कार्रवाई बहुत डिले होते हैं, उनको जस्टिस नहीं मिलते है। हाथरस का एक मिसाल हमारे सामने, रिसेंट मिसाल भी हमारे सामने है। तो कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो ठीक से होना चाहिए। उसके लिए उस पर प्रेशर डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा खवातीन हर लेवल पे, हर ऑफिशियल्स या एग्जीक्यूटिव में, पॉलिटिक्स में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में भी खवातीन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो काफी नहीं है। समाज में जो काम होना चाहिए वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे ठीक से होना चाहिए, वो है मॉरल वैल्यूज को लेकर। हमने वही कैंपेन चलाया, 1 महीने का, बहुत एक्सेप्टेंस मिला। सब लोग ये कहा है कि ये पूरा हमारा ही दिल की आवाज है बोल के। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां जहां हमने जाके, हमारा वॉलंटियर्स, हमारा स्पीकर्स जाके स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दिया, बहुत एक्सेप्टेंस मिला। वो उस कैंपेन के जरिए हमको ये भी समझ में आया है कि कितना डीप रूटेड है। अभी देख लीजिए, जब भी एक केस आते हैं रेप का, इस तरह का केसेस, और जो अक्यूज्ड है उनका हिस्ट्री अगर देखें तो वो शराब पीते हैं, नशे में है। तो जिस तरह हमारा हुकूमत इस पर तवज्जो दे रहा है, शराब और नशे का पॉलिसीज, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स, ड्रग्स तो स्कूल्स में भी अवेलेबल होते हैं आजकल, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि जो हेट स्पीचेस और डॉग विजल्स जो होते हैं अथॉरिटीज के जरिए, इस तरह का लोगों के जरिए, वो भी खवातीन का ही हिट होता है। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया में साइबर क्राइम्स भी देखे तो ये भी ज्यादा से ज्यादा खवातीन को अफेक्ट होते हैं। तो मॉरल वैल्यूज को इंस्टिल करने का, एनफोर्स करने का नहीं, इंस्टिल करने का काम होना चाहिए। घर से लेकर हमारा स्कूल से लेकर हर जगह में ये होना चाहिए। लॉस को एनफोर्स करना है, एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी मॉरली अपराइट होना चाहिए। अगर मॉरली अपराइट नहीं है तो अपने मनमानी करते हैं, अपने लिए क्या फायदा है वो देकर जजमेंट देते हैं। तो इसलिए सबसे अहम चीज ये है कि लोग खुदा को मानना है, लोग खुदा को डरना है। अगर किसी भी दुनिया में उनको कोई फायदा नहीं है तो जस्टिस के लिए, अदल के लिए वो खड़े होना चाहिए। तो उसके लिए मॉरल वैल्यूज को फैलना ही हम उसके जरिए ही हमको ये असल रिजल्ट, हमको डीप रूटेड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हमको मिलेगा। He endorsed the AMPLB call for protest on 13th March. But the Muslim Personal Law Board and other Muslim organizations had approached Janata-Dal Youth and the Telugu Party earlier. And they stalled the way of the Waqf bill for many months. Now both of them accepted the
BJP agenda, and they BJP is going forward. So will you approach again India alliance partners like the Janata Dal U and Telugu Party to start the process of Yes, or boycott them? yes, we are still. just one thing to add, the election is coming in Bihar. Janata Dal U wants Muslim vote. So in that, जी जी, हम अभी भी मायूस नहीं हैं और अभी भी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी और उसके साथ जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अलाइज को भी कन्विंस करने में, उनको दबाव बनाने में, उनको हिम्मत दिलाने में और डराने में भी। तो ये सब कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं और आखिर तक होती रहेंगी। लेकिन हमने ये कहा है कि, और हम तो समझते हैं कि अभी हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो है, सरकार समझदारी से काम लेगी और इस बिल को वापस ले लेगी, ये हम समझते हैं। लेकिन अगर सरकार जिद पर अड़ी रही और इस हालत में ये बिल पास हुआ तो जमात इस्लामी हिंद, दूसरी जो तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सब मिलकर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, लीगल एंड पीसफुल मीन्स हैं, उनको हम पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए आखिर तक इसको रोकने की कोशिश करेंगे।